आप करा दो मैम। मुझे I'll talk to you after the class. Okay, Bhavesh? Just call me after your class. So, बच्चे we were doing this chapter magnetic effects of electric current. तो इसमें आपने देखा magnetic field lines क्या होती हैं? The lines which are magnetic field is an area surrounding a magnet. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बच्चे. We are doing this chapter magnetic effects of electric current. तो इसमें magnetic field lines हमने पढ़ी थी MFL. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम प्लीज सिलेबस जो मैंने आपको कहा था हाँ मैम वो टेस्ट का। अच्छा टेस्ट का सिलेबस जो सेकंड चैप्टर है वो तो आई थिंक सभी के पास कॉमन आ रहा है सेकंड चैप्टर। यस मैम। तो सेकंड चैप्टर का तो है 11 चैप्टर में काफी स्कूल्स में 11 चैप्टर भी आ रहा है। जस्ट कैन यू जस्ट रेज योर हैंड जिसके स्कूल में 11 चैप्टर आ रहा है ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड। फास्ट जस्ट रेज योर हैंड जिनके स्कूल में ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड। ओके लावण्या, पावनी, वरुण, ओके भवेश, नंदिनी, yes. Ma'am, we are done with the PT1. Okay, so Navish. we are not when our PT1 PT2 will be conducted. I think it will be conducted in the end of September. So we have a different new syllabus. We have a new syllabus for that. Okay, just send me that syllabus, ठीक है? And for Okay. this, we'll discuss in the later part that about the test on Sunday. So I'll tell you the मैम syllabus. केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में से मैम क्या क्या मैं कटा है सिलेबस में से एक बार बताना मैम। Second chapter सारा आएगा बेटे, second chapter पूरा आ रहा है। I'll tell you in the एंड class 11th only. चैप्टर ओके मैम। 11th में बता देते हो, just wait. So let me continue with this part. ये complete हो जाएगा, then I'll tell you about the syllabus. अच्छा, magnetic field lines. So the lines, imaginary lines around the magnet in which its effect can be felt, they move away from north and they move towards the south. तो magnetic field lines जो है हमेशा उनकी direction होगी away from north and towards the south. ये सबको याद है? So they move away from north and they move towards the south. These are magnetic field lines. Now, magnetic field lines, these are just imaginary lines. अब अगर एक करंट कैरिंग वायर को आप होल्ड करते हो तो उसके लिए we have to find the magnetic field lines around a current carrying conductor. Suppose this is a wire in which current is flowing in a direction, maybe in the upward direction or maybe in the downward direction. So if we hold a current carrying wire, suppose this is a switch 3-pin plug. अब इसमें आपने पिन प्लग में आपने वायर को इंसर्ट किया है, 3 पिनर लगाया है, तो करंट स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम दैट वायर. इफ यू होल्ड दिस वायर, करंट कैरिंग वायर, इन योर राइट हैंड, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज योर इक्विपमेंट. अगर आप इसने आपने फैन के साथ लगाया है, कोई भी इक्विपमेंट के साथ लगाया आपने इसको, तो current will start to flow. If you try to hold this wire in your right hand, अगर आप इसको होल्ड करते हो इस वायर को in your right hand and the thumb will is pointing towards the current, then the curls of finger, जो आपने मुट्ठी बंद की हुई है, the curls of finger, the thumb will give the direction of current and the curls of finger will give the direction of magnetic field lines. So this is the law, this is the rule, right hand thumb rule. This was given by Maxwell. That is why it is known as Maxwell right hand thumb rule. So I'm going to tell you what happens if the current flows in a straight current carrying wire. This was given by Maxwell. So Maxwell right hand thumb rule, which gives us the direction of current and magnetic field lines passing through it. So Maxwell right hand thumb rule
It states that if we hold a current carrying wire in our right hand in such a way that thumb points in the direction of current, then the curls of finger will give the direction of magnetic field line. This is the right hand thumb rule. I hope it is clear to everyone कि if we No, hold ma'am. no अच्छा देखो एक current carrying wire है. If you try to hold that wire with your right hand, a current carrying wire जहाँ से current निकल रहा है वहाँ से अगर आप hold करो उस wire को, if you try to hold that wire with your right hand, then thumb will give the direction of current and the curls of the finger will give the direction of magnetic field lines. I hope it मैम is थंब भी क्यों देता है? बच्चे Ma'am, how इसमें it is possible? बेटे आपको वायर आप इमेजिनरी साइंस में इमेजिनेशन करनी पड़ेगी नविश. बेटे आपको मैंने बोला एक वायर को आपने होल्ड किया है, वायर विच इज कैरिंग करंट, और आपका थंब जो है ओपन किया हुआ है आपने. आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो, आई विल सेंड द पिक्चर जिसमें आपको ज़्यादा इजीली क्लियर होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन व्हेन इट इज पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, अगर एक स्ट्रेट वायर से करंट जा रहा है तो उसमें क्या डायरेक्शंस होंगी वो दी थी मैक्सवेल ने. तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. मैक्सवेल ने बताया कि अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड में होल्ड करते हैं such that the thumb points in the direction of current, then the curls of finger will give the direction of magnetic field lines. Now you can look at the diagram on the screen. If this is the current flowing in the upward direction, then the curls of finger will give the direction of magnetic field lines. अगर आपका ये हाथ है, इसमें thumb है, thumb is giving the direction of current, and these curls, that means the grip, the direction of curls of finger जिससे आपने grip किया हुआ है वायर को, will give the direction of magnetic field lines. तो क्वेश्चन था कि अगर कोई वायर स्ट्रेट है जिसमें करंट आए जा रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, तो वो कर्ल्स में होंगी, सर्कुलर होंगी लूप. तो इसमें इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा. अगर हम उल्टी बात करें अपोजिट, इफ द करंट इज इन द कर्ल फॉर्म, is in the grip form, then the magnetic field line will be in the straight wire. This will be the direction of magnetic field. लेकिन अब मैक्सवेल ने जो बताया था वो ये था, if we hold a current carrying wire in our right hand, then the thumb will give the direction of the current. This is the current, and the curls will give the direction of magnetic field. I hope it is clear now. So just write down, heading लिखो magnetic field due to a current carrying conductor. Heading लिखो magnetic field due to a current carrying conductor. I've shared that picture in the group. You can check it later. अच्छा, इसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक अभी शुरू किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर. अभी आपने पढ़ा, लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग. सबसे पहला लिखो ए पार्ट, थ्रू अ स्ट्रेट वायर. थ्रू अ स्ट्रेट वायर, अगर कोई सीधी वायर है, कोई भी वायर है उसमें करंट जा रहा है आई, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे फाइंड करोगे? दिस वाज गिवन बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. राइट डाउन. थ्रू अ स्ट्रेट वायर आप लिख रहे हो तो इसमें नोट डाउन करो. सबसे पहले लिखोगे मैक्सवेल, इट इज रिटन ऑन द स्क्रीन, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. मैक्सवेल राइट हैंड
thumb rule. Maxwell right hand thumb rule. इसमें आप लिखो, if we hold, it states that if we hold a current carrying wire, in the grip of our right hand, if we hold a current carrying straight wire in the grip of our right hand, in such a way that stretched thumb points in the direction of current, and curls of fingers will give the direction of magnetic field. कई बार इसको कॉर्क स्क्रू रूल भी बोला जाता है. आई एम राइटिंग इट डाउन. कॉर्क स्क्रू रूल. इसका मतलब अगर आप स्क्रू इन, जैसे आप एक कील लेते हो, आयरन नेल को जब आप स्क्रू इन करते हो, जब आप उसको क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हो तो करंट अंदर की तरफ जाता है, मतलब वो जो पिन है इट गोज इनवर्ड. और जब उसको एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को ओपन करते हो देन द करंट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. आई होप इट इज क्लियर. जब आप क्लॉकवाइज उसको मूव करते हो नेल को तो स्क्रू मूव्स इनवर्ड. जब आप एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करते हो स्क्रू कम्स आउटवर्ड. इसी तरह अगर आपने होल्ड की है क्लॉकवाइज तो करंट विल बी इन दी upward direction. Look here, thumb is pointing in the upward direction and curls जो clockwise होंगे. अगर आपने इसको हाथ को उल्टा कर दिया and your thumb is pointing in the downward direction in the wire, तो इसमें current नीचे है और इसकी जो rings हैं, जो आपके fingers हैं, they are in the anti clockwise downward direction. इसीलिए इसका नाम कॉर्क स्क्रू रूल भी है. और इससे फाइंड हुआ कि व्हाट हैपेंस इफ अ करंट फ्लोज थ्रू अ स्ट्रेट वायर. तो इसमें आप लिखोगे द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड मैग्नीट्यूड का मतलब क्या आता है? वैल्यू. द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड कौन सी बात हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the magnitude of field is directly proportional to the value of current and inverse to the distance from the wire. अगर आपने B की वैल्यू, B इज मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपने फाइंड करना है जितना करंट ज्यादा होगा उतना फील्ड ज्यादा होगी, जितना डिस्टेंस होगा उतनी फील्ड कम होगी. अगर हम वायर बनाएं I तो इसमें इसका मैग्नेटिक फील्ड विल बी दी कर्ल्स, विल बी दी सर्कुलर लाइंस. और सर्कुलर लाइंस क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन है तो इसमें क्लॉकवाइज होंगी. ड्रॉ दिस डायग्राम.
the magnitude of magnetic field is dependent on the current and distance. जितना करंट उतना फील्ड, जितना डिस्टेंस उतना कम मैग्नेटिक फील्ड, ऑपोजिट. तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इसकी पिक्चर आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप, आपको क्लियर हो जाएगा. मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इसकी स्टेटमेंट थी, इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग वायर इन आवर राइट हैंड in such a way that thumb points in the direction of current, then the curls of finger will give the direction of magnetic field lines. I hope it is clear with everyone. बहुत सिंपल सी बात की हमने. Next Yes, is Yes, ma'am. yes, okay. So Yes. अब आपने देखा yes, it's मैम ये डिस्टेंस वाला समझ मैम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है? हाँ अच्छा इधर देखो, जितना इस वायर से दूर जाओगे उतना उसका इफेक्ट कम होता जाएगा. यू कैन सी इट फ्रॉम द डायग्राम. आपको ये पता भी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा दूर जाओगे उतनी फील्ड लाइंस कम होंगी, उतनी फील्ड कम होगी उसकी. गॉट इट? यस मैम. ओके. सो नाउ कमिंग टू दिस पार्ट अगेन. अभी हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर में सर्कुलर लाइंस होती हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. एक आई जो है करंट, दिस इज योर फील्ड, और फील्ड को डिनोट करते हैं हम बी से. बी इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. अब अगर मैंने इसी वायर को, ये स्ट्रेट वायर थी, इसी वायर को मैंने अगर सर्कुलर ले लिया तो इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यू कैन वेरी वेल इमेजिन फ्रॉम द डायग्राम कि करंट जिसमें स्ट्रेट था इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आ गया. जो इसकी लूप्स थी विच वर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब वो उल्टी हो जाएंगी. दे विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज द डायग्राम फॉर अ सर्कुलर रिंग. लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लूप्स जो हैं आपस में मर्ज हो जाएंगी. आई एम रिपीटिंग, हम दो वायर, एक वायर हमने स्ट्रेट पड़ी थी, स्ट्रेट वायर को क्या किया हमने, उसको यू शेप बना दिया या सर्कुलर शेप बनाया, तो देखा गया कि उसमें जो दोनों की फील्ड लाइंस थी वो मर्ज होंगी. और मर्ज होने के बाद देखते हैं क्या होगा उसका. आई विल शो इट इन द नेक्स्ट डायग्राम. So I'm going to make the diagram for circular loop. क्योंकि दोनों की लाइंस मर्ज हो गई थी तो एक वायर से करंट जा रहा है. From this wire current is entering, from this wire current is leaving. और जहां से करंट एंटर करता है उसको हम साउथ पोल मानते हैं. तो इसमें सॉरी, जहां से करंट एंटर करता है दैट इज कंसीडर्ड एज नॉर्थ पोल. तो इसमें आप देखोगे कि अगर हम लाइंस फॉर्म करेंगे तो लूप्स बनेंगे बहुत बड़े बड़े, क्योंकि वो दोनों मर्ज हो चुके थे. तो इस केस में बहुत लंबी लंबी लाइंस होंगी. और अगर ये मैंने नॉर्थ बोला है तो अवे फ्रॉम नॉर्थ होता है एंड टुवर्ड्स दी साउथ. और कुछ लाइंस जो बीच में होंगी दे विल बी ऑलमोस्ट स्ट्रेट अवे फ्रॉम नॉर्थ and towards the south. So this is how the current will flow. current flow आप लोगों को पता चल चुका है. this is your current flow. ये वायर में करंट जा रहा है. this is your current flow. I'll try to make it with the red line. तो ये करंट जा रहा है इस वायर में, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं आपको अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड टुवर्ड्स दी साउथ. और जहाँ पे ये एंडिंग्स हैं वहाँ पे ये लूप्स बना देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में यहाँ पे आएंगी क्लॉकवाइज और यहाँ पे आएंगी अगेन एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि डायरेक्शन इज ऑपोजिट. आई होप इट इज क्लियर. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सर्कुलर लूप. पहले आप हेडिंग लिखो सर्कुलर लूप, देन आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन. राइट डाउन सर्कुलर लूप.
इसमें जिसको नहीं समझ आया वो दोबारा देखेंगे, क्योंकि जब हम स्ट्रेट वायर पढ़ रहे थे तो स्ट्रेट वायर में आपने देखा कि स्ट्रेट वायर में जो करंट है, इफ इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन देन क्लॉकवाइज उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं. सिंपल. If we hold a current carrying wire in our right hand, then the curls will give the direction of magnetic field lines. अब क्या किया हमने, दूसरे डायग्राम में इसी वायर को टेढ़ा कर दिया, इसको U शेप कर दिया. Now the current is flowing in this wire. एक में अपवर्ड जा रहा है करंट, तो उसी वायर में दूसरी तरफ से वो डाउनवर्ड हो गया. तो अगर एक तरफ क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ बट ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी. तो ये तो आप लोगों को समझ हो गया होगा. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ये दोनों लाइंस मर्ज कर जाती हैं, तो वो मर्ज होते ही एक लंबी लाइन के रूप में आती हैं, लाइक इन दिस. तो बोथ द लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे मर्ज एज वन. और जहाँ से करंट एंटर कर रहा है दैट इज कंसीडर्ड एज नॉर्थ पोल. तो यू कैन सी फ्रॉम हेयर, this is your north pole, and magnetic field lines, they always move away from north and towards the south. और जहाँ एंडिंग्स हैं वहां पे छोटे छोटे लूप्स बन जाएंगे, और ये लूप्स का डायग्राम एक में क्लॉकवाइज है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि एक में करंट एंटर कर रहा है इस वायर में, तो इस वायर से करंट निकल रहा है. आई होप इट इज क्लियर नाउ. प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सर्कुलर लूप. स्ट्रेट आपने बना ली है. ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर सर्कुलर लूप. The magnitude for magnetic field due to a circular wire the magnitude for magnetic field due to a circular wire is given by पहला पॉइंट लिखोगे, B is proportional to I and B is proportional to N. The magnitude for magnetic field due to a circular wire is given by, first लिखोगे B is proportional to I, field जितना बड़ा करंट उतना बड़ा field, and it is directly proportional to capital N. N में लिख लो number of turns. जितनी ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा फील्ड. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम रिपीट कर दोगे आपने जो बताया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार. ओके. अच्छा, मैंने आपको सिर्फ अभी यही टॉपिक करवाया है, ये बच्चों को नहीं समझ आता. हमने टॉपिक पढ़ा है कि व्हाट हैपेंस इफ अ करंट फ्लोज थ्रू अ सर्कुलर वायर. अभी तक हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट वायर, लेकिन अब हमने पढ़ा है ड्यू टू सर्कुलर वायर. तो सर्कुलर वायर में करंट एक तरफ से, ये दो वायर के दो एंड्स हैं, एक ये एंड है एक ये एंड है, एक एंड से वो करंट जा रहा है, एक एंड से करंट आ रहा है वापस. तो जहां से करंट एंटर कर रहा है वहां हमने बोल दिया इट इज अ नॉर्थ पोल. तो नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम नॉर्थ होता है, दिस इज योर नॉर्थ पोल. और जहां से करंट निकल रहा है दैट इज कंसीडर्ड एज साउथ पोल. तो इसमें लाइंस बनाई गई, क्योंकि लाइंस आपको पता है ऐसे बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत बड़ी बड़ी लाइंस, ये सर्कल बनाएंगे बहुत बड़े बड़े, अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड टुवर्ड्स दी साउथ. इसी तरह यहाँ पे भी बहुत बड़े लूप्स बनेंगे, अवे फ्रॉम नॉर्थ
and towards the south. बीच में लाइंस इतनी बड़ी हैं कि वो सीधी हो गई अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड टुवर्ड्स दी साउथ, और एंड में छोटे से लूप्स बन गए, बहुत सारे लूप्स बनेंगे जिसमें एक तरफ वो क्लॉकवाइज बना रहे हैं, दूसरी तरफ वो एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे. तो इस हिसाब से आपने डायग्राम ड्रॉ करना है फॉर सर्कुलर लूप. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया भावेश. इज दिस क्लियर भावेश यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके. तो दिस इज द डायग्राम फॉर सर्कुलर लूप. अब हमने पढ़ा कि ये किस पे डिपेंडेंट है. तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इन अ सर्कुलर वायर इज डिपेंडेंट ऑन करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स. क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर वायर. क्वेश्चन सुनना, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, हम इसकी बी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं इन अ सर्कुलर वायर. तो इसमें आप देख सकते हो, यू कैन सी इट फ्रॉम द स्क्रीन दैट इफ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, आई क्या था इसके अंदर करंट, और बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी उतना ज्यादा फील्ड होगा सर्कुलर कॉइल में, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फील्ड स्ट्रांग होगा. इसी पे थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड. मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड. आज आपने पहले पढ़ा स्ट्रेट वायर, जो मैक्सवेल रूल दिया था जिसमें सेकंड आपने पढ़ा सर्कुलर, अब आप पढ़ रहे हो सोलेनॉइड. सोलेनॉइड के बारे में लिखो, इट is defined as a coil. It is defined as a coil consisting of large number of turns. It is defined as a coil consisting of large number of circular turns. Riya, I'll repeat it for you, bete. Just write down from here. In a solenoid, it is defined as a coil consisting of large number of circular turns of insulated copper wire. Large number of circular turns of insulated copper wire. These turns are closely wrapped to form a cylinder. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, what's the meaning of helically wound? Okay, helically twisted, helically round. I just come back to you, bete. Just listen to me carefully. I'm quickly revising it for you, Riya. I think there is some network issue. बच्चे देखो, इसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा आज टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर. अगर एक स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट है और आपने उसको होल्ड किया, उसको ग्रिप किया, तो जो थंब होगा, इफ यू स्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमें पता है स्विच लगा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन लगाई हुई है, स्विच ऑन किया हुआ है, ऑब्वियसली करंट इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अगर स्विच दीवार में लगा हुआ है यहाँ पे, then the current is going in the downward direction. तो दो तरीके से हो सकता है, the current can be in upward direction or downward direction. तो करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब रहेगा. तो मैक्सवेल ने रूल दिया, मैक्सवेल states that if we hold a current carrying wire in our right hand ही होना चाहिए, if we hold a current carrying wire in our right hand and stretch our thumb in the direction of current, देखो करंट की डायरेक्शन में थंब को स्ट्रेच किया हुआ है, देन द कर्ल्स ऑफ फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. दैट्स इट. इसी को हमने दूसरा नाम दिया था कॉर्क स्क्रू रूल. इसमें मैंने आपको बताया, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, स्क्रू नेल्स होती हैं, आयरन नेल्स, कीलें होती हैं स्क्रू वाली,
अगर आप उसको स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो जो आपका नेल है वो अंदर की तरफ चला जाता है, और उसको जब स्क्रू आउट करते हो, जब आप उसको ओपन करते हो, एंटी क्लॉकवाइज रोल करते हो, देन योर स्क्रू कम्स आउट। तो सेम थिंग इसमें है, इसीलिए इसको मैक्सवेल स्क्रू रूल बोला गया। ये जो आपने करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट वायर में पढ़ा, पूछा गया ये किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। बी जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द करंट, मोर द करंट मोर द फील्ड, मोर द डिस्टेंस लेस द फील्ड। तो इसका मतलब क्या है, जितना इस वायर में करंट होगा उतना इसका फील्ड स्ट्रांग होगा, उतना करंट और उतना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। जितनी दूर जाओगे उतना फील्ड कम होता जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है स्ट्रेट वायर। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन नाउ। नाउ आई एम कमिंग, अगर मैंने इसी स्ट्रेट वायर को यू शेप टर्न कर लिया तो आप देख सकते हो कि जो करंट था एक वायर में अपवर्ड जा रहा है, इसमें अपवर्ड जा रहा था, उसी वायर में उल्टा हो जाएगा। और अगर ये करंट उल्टा हुआ है तो जो लूप्स है एक में क्लॉकवाइज है तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करेंगे और मर्ज करने की बजाय ये मर्ज करते ही ये एक लंबा लूप फॉर्म कर देंगे जो बहुत बड़ा लूप होगा। और ये इसको हमने नेक्स्ट डायग्राम में क्लियर किया। व्हेन द वायर इज इन सर्कुलर शेप, स्ट्रेट वायर की बजाय अब हमने सर्कुलर वायर ली है, जिसमें से करंट एक वायर में से, एक वायर के पीस में से करंट जा रहा है, दूसरे वायर में से ये देखो करंट ये निकल रहा है, इधर से करंट निकल रहा है। तो आई मेड दी एरोज। अब वो जो लाइंस ओवरलैप हो रही थी इतनी बड़ी हो गई कि स्ट्रेट चेन ये देखो स्ट्रेट बन गई। और जहां से करंट एंटर कर रहा था, मैंने आपको बताया था जिस वायर से करंट एंटर कर रहा है उसको हमने लिया था नॉर्थ पोल। तो ये सारा नॉर्थ है, यहाँ ऑपोजिट साउथ है, जहां से करंट निकल रहा है दैट इज कंसीडर्ड एज साउथ, जहां से एंटर कर रहे हैं दैट इज कंसीडर्ड एज नॉर्थ। और इसमें लूप्स बनाई गई, बहुत बड़े बड़े लूप्स बने अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड टुवर्ड्स दी साउथ, again away from north and towards the south। और बीच में लाइंस इतनी ज्यादा सीधी हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, और वो भी यही फॉर्म कर रही थी अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड टुवर्ड्स दी साउथ। सो दिस इज द डायग्राम फॉर योर सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन नाउ कि अगर स्ट्रेट वायर से जा रहा है, स्ट्रेट वायर से जा रहा था तो उसकी डायरेक्शन और थी। अब अगर सर्कुलर वायर से आ रहा है तो दिस इज द डायरेक्शन। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस डिपेंड्स, ये दो चीजों पे डिपेंडेंट है। अगेन ये फील्ड जो है दो चीजों पे डिपेंडेंट होगा, एक आई पे एक एन पे। आई क्या है करंट, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स। जितना करंट तेज होगा सर्कुलर वायर में उतना फील्ड ज्यादा होगा, जितनी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगी उतना फील्ड ज्यादा होगा। इसमें हम एग्जांपल हमने थर्ड टाइप पढ़ी सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मैंने अभी बताया, लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉपर वायर की इंसुलेशन, इंसुलेटेड मतलब इसके ऊपर कवरिंग है, हमने बहुत सारी कॉपर वायर्स को रोल डाउन किया और उनको एक सिलेंडर के रूप में रोल डाउन किया and they are forming a solenoid. The solenoid is a coil. I've already dictated it to you. It is a coil consisting of large number of circular turns of insulated copper wire. अब एक क्वेश्चन पूछा यशिका ने, व्हाट इज हेलिकली ट्विस्टेड और हेलिकली टर्न? दिस इज हेलिक्स, ये लाइक दिस, ओके। कंप्लीटली सर्कुलर नहीं है क्योंकि ये जो हेलिक्स है ये इधर क्रॉस कर गया इसको। सर्कल क्या होता है, दिस इज द कंप्लीट सर्कल, एक पॉइंट से स्टार्ट किया दूसरे पॉइंट में आ गया, बट हियर इट इज नॉट ज्वाइनिंग, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेलिकली ट्विस्टेड। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो अब ये सोलेनॉइड के बारे में आया, तो सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इस सोलेनॉइड को अगर मैंने, लुक केयरफुली, अगर मैंने इसको एक बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे की लगा दी, तो इस वायर में से, ये वायर है कॉपर की वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसको हमने सर्कुलर शेप में वाउंड किया हुआ है,
अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया बैटरी के साथ, की के साथ, तो करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। और जहां से करंट, अब इस केस में सोलेनॉइड में this part where the current is moving is known as north pole, and this part where the current is entering is considered as south pole. और आप लोग imagine कर सकते हो कि now this part, this solenoid is behaving like a magnet because it has two poles, north and south. और इसी वजह से हमें इसके loops बनाने पड़ेंगे as we make in a magnet. So I'm going to show it with the diagram जिसमें आपको loops बनाने हैं. These are the circular loops and they are moving away from north and towards the south. और बीच में lines तो straight भी होंगी, बहुत लंबी होंगी, away from north and towards the south, again away from north and towards the south. This is how you will be making a solenoid. I'm going to share this picture again of solenoid. पहले सिर्फ आपको समझना है solenoid क्या होता है. Solenoid हमने wire को wound किया हुआ है in a form of a circular loops. और इतनी ज़्यादा closely packed हैं कि they appear like a cylinder and they are behaving like a magnet. जहाँ से current enter कर रहा है that is considered as south pole. जहाँ से current निकल रहा है that is considered as north pole. This is what is solenoid. Now write down about electromagnet. Electromagnet. रिया क्या क्लियर हुआ बेटे? रिया ठाकुर, रिया ठाकुर बच्चे क्या क्लियर है? सब आप लोगों को सभी को क्लियर है? यस, रिप्लाई बैक. Yes, ma'am. Okay, okay, very good. Yes, ma'am. Okay, Yes, okay. ma'am. Okay, okay, okay. Just raise your hand if it is clear to everyone. Just raise your hand. Okay, Disha, Lavanya, Bhumi, Daman, Nandini, Navish. Yes, Ayush, Ashish, Bhavya, I'm waiting, bache. Bhavya, I have repeated everything for you, bete. I know there was some network issue. Bhavya, I hope it is clear with you, Bhavya Pathania. Yes, Pavni, Karman, Karan, Bhavya, Harshit, Riya Thakur. Okay. Okay, Pavni, Harman, Kumar, got it. So I guess till now everything is clear to you. अब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में मैंने आपको शायद बताया भी था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके जो स्कूल बेल्स हैं उसमें लगी होती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती हैं, इवन योर टेलीफोन्स, योर लाउड स्पीकर्स, इवन आपको शायद याद होगा मैंने बताया था जंक यार्ड्स में से अगर आपने स्क्रैप को रिमूव करना है देन ऑल्सो यू यूज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है? जस्ट लुक ऑन द स्क्रीन. इलेक्ट्रोमैग्नेट आपकी ये सोलेनॉइड है. सोलेनॉइड क्या थी? एक सर्कुलर वायर की फॉर्म में हमने लूप्स में हमने वायर को, कौन सी वायर को? इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड किया हुआ है in the form of a cylinder and it is connected to a battery and a key. When the current is on then it behaves like a magnet, but आपको अगर याद हो मैंने शायद बताया था, if we add a soft iron piece, soft iron core in the middle of this solenoid, then it will behave like a electromagnet. That means it will be a strong magnet in the presence of electricity. As you all know, soft iron has magnetic property. It will behave like a magnet, a strong magnet in the presence of electricity. Solenoid भी magnet है but इतना strong effect नहीं है, क्योंकि अब सुनो क्या reason है why solenoid and electromagnet have a difference. In solenoid you can see there are some air gaps. This is a air gap, this is a air gap in between. But if we try to put a metallic piece inside this, then there will be no air gap in between.
तो आपको इमेजिन कर सकते हो ये तार जो है, ये वायर है, इसी मेटल रॉड के ऊपर रैप्ड है. There is no air gap in between. That is why the electromagnet is comparatively stronger magnet. Write down about electromagnet. The strong magnetic field is produced inside a solenoid if we place a piece of soft iron core inside the coil. If we place a piece of soft iron core inside the coil, the magnet so formed is called as electromagnet. The magnet so formed is called as electromagnet. It is used in electric motors, telephones, loudspeakers, electric motor, bells, loudspeaker, telephones. आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो पढ़ा हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में. एक तो स्ट्रेट वायर, फिर उसी वायर को जब हमने सर्कुलर लूप में कर दिया सर्कुलर वायर, फिर बहुत सारे सर्कल्स को किया सोलेनॉइड. सोलेनॉइड में हमने इंसर्ट कर दिया आयरन कोर, देन इट वाज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. कितने बच्चों को ये टॉपिक्स बिल्कुल थॉरो हो चुके हैं? रेज योर हैंड फास्ट. Okay. Yes, Ayush, Ashish, Bhavya, Disha, Harman, Karan, Karman, Raj, Ria, Navreet. I'm waiting, bete. Okay, Kumar. Yes, Karan, Karman, Harman, Disha, Bhavya, Rajveer, Navish. Okay, Kumar, Navish. Got it. Okay, so sabhi ko almost clear hai ye topic. Now we are coming to another part which is very, very, very important. One student has asked me question in the message, what do you mean by Napier mag? Okay, I'll tell. अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, अगर आपने मैग्नेट, एक तो होती है नेचुरल मैग्नेट जो हमें मैग्नीशिया में मिली थी, मैग्नीशिया मैग्नेट जिसका नाम है, दैट इज एन अलॉय ऑफ, दैट इज एन ओर ऑफ आयरन, मैग्नेटाइट ओर जो जमीन में मिलता है. लेकिन अगर आपने आर्टिफिशियल बनानी है तो वो आपको अलॉय है, आयरन के साथ डालना पड़ेगा, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट. उसी तरह एक और आता है विच इज कॉल्ड एज नाइपर मैग, MAG. Napier mag is an alloy of nickel, titanium, aluminium along with iron, which is used for making magnet. They are used for making very strong magnet. Got it?
So Nipromag is an alloy containing nickel, titanium, aluminium along with iron. They are used for making the magnets, strong magnets. जैसे Alnico. Alnico में alloy of aluminium, nickel and cobalt along with the iron. Okay. And next part is, what is the force on a current carrying wire? What is the force on a current carrying wire? अब आपने मैग्नेटिक फील्ड समझ लिया, आपने इस चैप्टर में अभी तक जो पढ़ा, दैट इज योर करंट एंड द फील्ड सराउंडिंग दिस करंट कैरिंग वायर. मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. 3 चीजें आपको याद करनी है, एफ बी आई. अगर आपको पता हो यूएस में, जैसे यहाँ सीबीआई है, वहां पे यूएस में ये जो एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसीज, वहां पे एफबीआई है. तो इसको याद करने का यही तरीका है, एफबीआई. और एफबीआई आपके लेफ्ट हैंड, दिस वाज गिवन बाय फ्लेमिंग. फ्लेमिंग अगेन अ नेम ऑफ साइंटिस्ट. राइट हैंड थंब रूल लिया था मैक्सवेल ने. फ्लेमिंग ने राइट हैंड, जो मैक्सवेल रूल था, मैक्सवेल ने सिर्फ करंट और फील्ड के बारे में बताया था, लेकिन फील्ड होता है बी. तो मैक्सवेल ने सिर्फ बी और आई बताया था, लेकिन फ्लेमिंग ने एफ, बी और आई तीनों के बारे में बताया. और इसने रूल दिया था विच इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. और लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना, इफ वी स्ट्रेच, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड लो, इफ वी स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर of your left hand at right angle to each other, then thumb will give the direction of force, the index finger will give the direction of field, and the middle finger will give the direction of current. तो उसने बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, if we hold 3 fingers mutually perpendicular to each other, then thumb, ये 3D होगा, then thumb will give the direction of force, your index finger will give the direction of field, and middle finger will give the direction of current. So I generally ask my students, अगर हमारी classes normally होती तो I would have asked you all to write down FBI in your left hand so that आप लोगों को याद रहे. thumb पे आप लिखोगे F, B लिखोगे index finger, your pointing finger, हम किसी को भी direction हम बोलते हैं ना, वो देखो, तो that is your pointing finger, that is your index finger. और जो मिडिल फिंगर है उस पर आपने लिखना है आई, करंट, तो एफ बी आई. तो राइट डाउन द हेडिंग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. अभी तक हमने करंट और फील्ड पढ़ा था, लेकिन अब आप पढ़ रहे हो फोर्स. तो राइट डाउन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. फोर्स के लिए आप साइंटिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा. लिखो फ्लेमिंग, FLEMING, Fleming's left hand rule. Fleming left hand rule. Excuse me मैम, Yes. मैं रिपीट कर दूं मैम, मैं फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था Okay, okay, भावेश. लास्ट 1 मिनट में. Okay, okay. भावेश बेटे, आपको मैंने बोला कि अभी तक जो आपने पढ़ा, राइट हैंड थंब रूल दिया था मैक्सवेल ने, उसने सिर्फ बी और आई के बारे में बताया था, फील्ड और करंट. लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं फ्लेमिंग का रूल, जिसने FBI फोर्स भी बता दिया. तो आप ऊपर हेडिंग लिख रहे हो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तीनों चीजें, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, FBI. F क्या है? फोर्स. करंट क्या है? I. फील्ड क्या है? B. तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो हेडिंग आपने लिखी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इसमें आप लिखो इट स्टेट्स दैट इफ फोर फिंगर, FORE, FOUR मत लिख देना. इट स्टेट्स दैट इफ फोर फिंगर, FORE, फोर फिंगर, comma thumb, if forefinger, thumb and middle finger of your left hand, forefinger, thumb and middle finger of your left hand
अच्छा, किसी का कनेक्टिविटी इशू था अभी, तो आई एम रिपीटिंग। अब हम पढ़ रहे हैं फ्लेमिंग में। तो फ्लेमिंग ने क्या किया, तीनों के बारे में बताया। तीन क्या चीज थी, FBI, फोर्स, फील्ड और करंट। मैक्सवेल ने सिर्फ बी और आई बताया था, फील्ड और करंट। तो फ्लेमिंग में आप लिख रहे हो, रूल लिख रहे हो, राइट डाउन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये सिर्फ लेफ्ट हैंड पे अप्लाई होगा, लेकिन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी है, वो विल डिस्कस लेटर ऑन। वैसे वो पार्ट आपका डिलीट हो चुका है, बट आई विल गिव यू एन आइडिया अबाउट दैट। इट स्टेट्स दैट if forefinger, FORE, forefinger, comma, thumb and middle finger of your left hand are stretched, if forefinger, thumb and middle finger of your left hand are stretched mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, such that forefinger points such that forefinger points in the direction of field, forefinger points in the direction of field, FORE था, forefinger points in the direction of field, comma, middle finger indicates the direction of current, then thumb will point in the direction of force, then thumb will point in the direction of force. हमारा इसमें से बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रह चुका है, मोटर और EMI, दैट्स इट। इसके बाद जनरेटर, DC, AC और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सारा इरेज हो चुका है, डिलीट हो चुका है। सो एक टॉपिक रह गया, विल बी कंप्लीटिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। एंड ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। सेकेंड चैप्टर का जो आपने टेस्ट देना है वो आई विल रिवाइज इट इन द नेक्स्ट क्लास, सेकेंड और 11th सेकेंड चैप्टर मोस्टली सब बच्चे पढ़ चुके हैं, एंड आई एम गिविंग यू एन इंस्ट्रक्शन कि आपने कैसे पढ़ना है। आप लोग सबसे पहले जो उसके लास्ट 2 चैप्टर के एंड में लास्ट 2 पेजेस हैं सॉल्ट्स के, पहले आप सारे सॉल्ट्स लर्न करोगे लिख लिख के। फिर उसके बाद जो आगे दी हुई है एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज, वो पार्ट काफी इजी है। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड PDF फाइल, आई थिंक सेकेंड चैप्टर की नहीं मैंने शेयर किया, आई विल डू दैट। अच्छा, आपका टेस्ट कौन से चैप्टर का मैंने, यस चैप्टर 1 आई गेस, यस। Ma'am, you have taken the test of chapter 2. सॉरी, हाँ बच्चे, यस यस, चैप्टर 2 ऑलरेडी आपका टेस्ट हो चुका है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 11, सॉरी, चैप्टर 1 इज वेरी इजी। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ PDF फाइल विद यू, एंड आई थिंक सभी को चैप्टर 1 में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चैप्टर 1 के टेस्ट के लिए। रेस्ट इज चैप्टर 11, आई विल रिवाइज दैट चैप्टर इन सैटरडे क्लास, आई विल रिवाइज दैट चैप्टर। यस मैम चैप्टर 11 मैम वो एक दिन में तो मैम उसकी तैयारी नहीं हो पाएगी मैम अच्छी तरह जो है। बच्चे अच्छे से नहीं हो पाएगी, बट आई विल ट्राई कि आई विल शेयर दी नोट्स विद यू। एंड बच्चे बाकी उसमें काफी टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, जो फ्रंट के जो आगे के टॉपिक्स हैं, ह्यूमन आई हो गया, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, काफी टॉपिक्स जो है इरेज हो चुके हैं, एंड इट इज रिलेटेड टू 10 चैप्टर ओनली। So don't worry, I'll try to share the PDF file with you. And बच्चों आप लोग चैप्टर 1 की तैयारी आज आप लोग कंप्लीट कर लो,
and I'll send you the MCQs from that chapter also. So we'll talk about the test in the next class. So I'll try to revise that chapter. Please do not miss your classes as revision classes are going on. Please. Okay, ma'am. Okay, okay, bachcho. Take care, everyone. Bye bye for now. Bye, ma'am. Bye bye. Bye. Bye bye.